My dear students, in this session we'll be taking up questions of LCM and HCF related to number system that have appeared in ZAT examination in previous years. So let us first do a 2-minute summary, quick basics on LCM and HCF. So what is an HCF? Highest common factor. A factor is a number that divides any number. Factor is a number that divides any number. For example, particular number n. For example, if we talk of 24 के factors क्या होंगे? 1 into 24, 1 and 24 both are factors, and both multiplied give us the number 24. That is why they are called factors, because we need two of them to make the number. Similarly, 2 into 12, those are also factors, 3 into 8 and 4 into 6. So there are total 8 factors of 24. But the highest factor is which one? 24, the number itself. But if there are two numbers, let us say 12 and 24, and we identify factors of both, which one will be the highest factor? Highest factor will always be a number that is either smaller than the smaller number or at the max equal to the smaller number. In this case, the highest common factor will be 12. HCF will be equal to 12. Isn't it so? ठीक है, फैक्टर्स तो बहुत सारे होंगे. 1 भी फैक्टर है दोनों का, 2 is also a factor, 3 is also a factor, even 4 is also a factor, 6 is also a factor. So these are also factors, but highest common factor will be 12. Clear? Similarly, if we talk of LCM, lowest common multiple, least common multiple. LCM is a multiple, one of the multiples, but the least common multiple is the one that we are concerned about. And multiple of any number will always be greater than that number. So for example, again, if we take 12 and 24, these two numbers, definitely 48 is also a multiple, 96 is also a multiple, 24 is also a multiple, because 24 is 12 into 2 and 24 into 1. So all the multiples are there, but 24 is the smallest multiple. And when we are concerned about the smallest multiple, LCM is needed, and LCM is 24 only. Clear? So for any two numbers in general, if HCF is equal to H and LCM is equal to L, the relationship that holds is, if the numbers are A and B, then H into L will be equal to A into B. This relationship is also always hold, because we can write A as H तो HCF है, और HCF is the common factor, जो common factor उनके बीच में, उसके बाद जो बच गए factors, uncommon factors, so we can write A as H into X. Similarly, we can write B as H into Y. ठीक है, HCF तो H है, LCM क्या आएगा? Think about it. LCM में H तो रहेगा जो common factor है, but जो uncommon है वो भी तो रहेंगे, A के भी और B के भी, तो H into X into Y, this will be our LCM. So if you multiply both H and L, तो H into L हो जाएगा H into HXY, which is nothing but Hx into Hy, and that is why the relationship holds. Now let us start the questions with this understanding. Question number 1 is, the addition of 7 distinct positive integers is 1740. There are 7 distinct positive integers, and we have to add them, and the addition, the sum is equal to 1740. What is the largest possible greatest common divisor? Greatest common divisor GCD is also equal to HCF only. HCF को ही हम greatest common divisor भी कहते हैं, both are same thing. So 1740 उनका sum आ रहा है. We need to identify the largest possible greatest common divisor of these 7 distinct positive integers. ठीक है, हमें HCF इनका मैक्सिमाइज करना है. सबसे पहले तो 1740 को फैक्टराइज करते हैं, बिकॉज जो सम आ रहा है इन सारे के सारे नंबर्स का, दैट इज 1740. ठीक है, एंड इफ लेट अस से HCF इज इक्वल टू H, और ये 7 नंबर्स है, तो H इंटू A1 प्लस H इंटू A2 प्लस H इंटू A3 एंड सो ऑन टिल H इंटू A7, दैट इज 1740. H को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? A1 प्लस A2 टिल A7, दैट इज 1740. और वी नीड टू मैक्सिमाइज H. अगर H को मैक्सिमाइज करें, प्रोडक्ट तो हमारा सेम है, तो दिस वैल्यू शुड बी मिनिमाइज, दिस शुड बी मिनिमम, द सम ऑफ 7 नंबर्स शुड बी मिनिमम H को कॉमन लेने के बाद में, इजंट इट सो? तभी तो H मैक्सिमम होगा. तो उसके लिए फैक्टराइज करना इंपॉर्टेंट. फैक्टराइज करेंगे तो ये 1740 इज व्हाट? 174 इंटू 10, एंड 174 is divisible by 3
इवन नंबर भी है, सो 6 इंटू कितना हो जा रहा है ये, 6 इंटू 29 इंटू 10. सो बेसिकली दिस इज 2 into 2 into 3 into 5 into 29 which is also a prime number. 29 is a prime number. अब हमको चाहिए कि मैक्सिमाइज करें हम h को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मिनिमाइज करना पड़ेगा सम को. सम कितना हो सकता है मिनिमम, इफ देयर आर दीज आर 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, सो जो बचा हुआ पोर्शन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बाद में a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a7, लीस्ट वैल्यू पॉसिबल विल बी, अगर ये वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 हो, बिकॉज डिफरेंट होंगे, डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, सम कितना आएगा, this will be 4 into 7 28. So sum in this case will be 28. Minimum sum possible after we've taken out the highest common factor is 28. 28. That is the minimum possible sum. So yes, 29 can be taken as that sum. कि instead of 7 एक वैल्यू 8 हो जाएगी, बिकॉज 28 तो हम बना भी नहीं सकते. ठीक है, सो एक वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी. इन दैट केस जो बचा हुआ पोर्शन है दैट विल बी अवर HCF. अगर हम HCF को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, करने को तो ये भी कर सकते हैं कि हम इंस्टेड 2 इंटू 3 इंटू 5 को सेपरेट ले लें और फिर बचा हुआ 2 इंटू 29 यानी 58 सम आ जाए 7 नंबर्स का, और ये HCF आ जाए हमारा. बट क्या ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा ना. तो अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो वी नीड टू आइडेंटिफाई सच अ वैल्यू ऑफ सम ऑफ 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आफ्टर टेकिंग आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज मिनिमम. सो दैट पॉसिबल केस इज व्हेन वी टेक दैट सम एज 29. That sum is 29. So definitely our highest common factor will be 2 into 2 into 3 into 5, which is 60. Option B will be our answer. Clear है? ठीक है. अच्छा, बाकी ऑप्शंस कुछ इतने स्टूपिड दिए हुए थे कि 74, 140, 42, ये तो डिवाइड ही नहीं कर रहे नंबर को, ये तो डिवाइड ही नहीं कर रहे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हो सकता है. बस बट प्रॉब्लम ये है ऑप्शन ई नवदीस भी दे के रखा है, इसलिए इनको डायरेक्टली हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते. एलिमिनेट तो कर सकते हैं बट 60 को टिक नहीं कर पाएंगे. 42 तो हो ही नहीं सकता, 7 का मल्टीपल है 74, कोई सेंस ही नहीं बनता. 140 कोई सेंस ही नहीं बनता. ओनली ऑप्शन दैट कुड हैव बीन द आंसर कुड हैव बीन 60 या फिर नन ऑफ दीज. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मधुरा फ्रूट्स कंपनी इज पैकिंग 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इनटू बॉक्सेस. मधुरा फ्रूट्स कंपनी इज पैकिंग 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इनटू बॉक्सेस. There are 126 oranges, 162 apples, 198 guavas and 308 pears. So 126 are oranges, 162 are apples, 198 are guavas and 306 are pears. और ये बिल्कुल टिपिकल ट्रेडमार्क वाला क्वेश्चन है. The fruits must be packed in such a way that a given box must have only one type of fruit. यानी एक बॉक्स में सिर्फ एक टाइप के फ्रूट होने चाहिए. And must contain the same number of fruits यूनिट्स एज एनी अदर बॉक्स. यानी कि हर एक बॉक्स में नंबर ऑफ फ्रूट सेम हो और एक बॉक्स में एक टाइप के फ्रूट हो. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, तुम मल्टीपल बॉक्सेस बना रहे हो जिनमें कि फ्रूट्स रखने वाले हो, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स इन अ बॉक्स विल बी लेसर देन दीज वैल्यूज. इन वैल्यूज से कम होना चाहिए. और अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए. अगर हमें बॉक्सेस का नंबर मिनिमम चाहिए यानी एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स रख पाए, वी नीड टू पैक एज मेनी फ्रूट्स एज पॉसिबल इन अ सिंगल बॉक्स एंड दैट विल डेफिनेटली बी लेसर देन दीज वैल्यूज. यानी कि हमें क्या चाहिए, एक बॉक्स के अंदर के फ्रूट्स मैक्सिमम चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, इफेक्टिवली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए. इन सब का क्या वैल्यू आएगा जब भी HCF निकालना है ऐसी वैल्यूज का. तो सबसे पहले देखो जो सबसे क्लोज दो नंबर्स हो उनके बीच का डिफरेंस देखो. सबसे क्लोज दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखो. यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 36 आ रहा है. हियर ऑल्सो दिस इज 36. तो 36 क्या HCF हो सकता है इसका, थिंक अबाउट इट. 36 HCF हो सकता है. 36 से अगर डिवाइड करेंगे 126 को तो नहीं जाएगा, 18 से डिवाइड होगा. यानी कि 36 अगर HCF नहीं हो सकता तो उसका भी फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. डेफिनेटली यहाँ पे 18 से डिवाइड हो रहा है 126, डिफरेंस है 36, यानी 162 भी डिवाइड होगा, 198 भी डिवाइड होगा और 308 9 का मल्टीपल है, इवन है. डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो डिवाइडिंग. तो HCF हमारा 18 आ जाएगा. HCF इज 18. HCF ऑल दीज नंबर्स इज 18. ठीक है, 18 आ गया. यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस तो नहीं मिला हमें, एक बॉक्स के अंदर के फ्रूट्स कितने होंगे, दैट विल बी 18. सो 18 हमारा आंसर नहीं है, 18 आंसर नहीं है, तो 18 को टिक नहीं कर देना है. ठीक है, नाउ वी नो कि 18 इज द नंबर ऑफ फ्रूट्स इनसाइड अ बॉक्स. नाउ 126 ऑरेंजेस हैं, कितने बॉक्स लगेंगे हमको, 126 बाई 18, 7 बॉक्सेस. सिमिलरली 7 + 2 9 बॉक्सेस फॉर एप्पल्स, 9 + 2 11 बॉक्सेस फॉर गुआवास. और 306 के लिए कितना हुआ, 180 + 126 यानी कि 10 + 7 17. तो टोटल सम हो जाएगा 7 + 9 16 + 11 27 + 17 44. ऑप्शन सी विल बी द आंसर.
total boxes that we need is equal to 44. क्लियर है? एंड दैट इज द मिनिमम वैल्यू, नॉट द ओनली वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, इससे कम होगा तो फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A supplier receives the orders from 5 different buyers. Each buyer places their order only on a Monday. The first buyer places the order after every 2 weeks, the second buyer after every 6 weeks, the third one after every 8 weeks, the fourth every 4 weeks, the fifth after every 3 weeks. It is known that on January 1st, which was a Monday, each of these 5 buyers place an order with the supplier. देखो एग्जैक्ट में हर एक जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में क्यों स्टोरी लिखी होती है? बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू चेक कितना तुमने रट्टा मार लिया है, कितने फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए. दे वॉन्ट टू चेक वेदर अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन, आई मीन अपार्ट फ्रॉम learning those formulas, can you understand a question? I mean, they also want to check your creativity aspect, and that is why हर एक क्वेश्चन में वो थोड़ा सा तामझाम, थोड़ा चीज़ें ऐड कर देते हैं, कहानी लिख देते हैं, so that तुम कंफ्यूज हो जाओ. अगर तुम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड होके अपना आंसर मार्क करने वाले हो तो somehow they are making it difficult for you. But if you are very much into the other parts as well, I mean you are going to apply your left brain as well as right brain, then these questions are very right for you. ठीक है, तो हमेशा एग्जाम में भी आपको कोशिश यही करना है कि काम और कंपोज रहना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपर्ली समझना है, उसके बाद में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. देयर इंटेंडेड पर्पज इज लाइक दैट. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये अननोइंगली हो रहा है. दे वॉन्ट यू टू एम्फसाइज ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग, और तभी आप सॉल्व कर पाओ, यही वो चाहते हैं. ये नहीं चाहते कि डायरेक्टली आपने बस फॉर्मूला में वैल्यूज डाली और खट से आंसर निकल गया. ठीक है, दैट इज वाई क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है. और एग्जाम में भी और इन जनरल अभी भी आपको क्वेश्चंस को पढ़ते समय या सॉल्व करते समय उनको जितना हो सके एंजॉय करने की कोशिश करनी है. बिकॉज अदरवाइज दिस विल बिकम अ लॉट ऑफ लेथार्जिक, बिकॉज इतना ज़्यादा लैंग्वेज होगा तो प्रॉब्लम होगा अगर आप एंजॉय नहीं करने की कोशिश करोगे तो. ठीक है, बहरहाल इन दिस क्वेश्चन क्या दे रहा है? पहला वाला जो बायर है दैट इज बाइंग द ऑर्डर आफ्टर एवरी 2 वीक्स, सेकेंड वाला इन 6 वीक्स, थर्ड आफ्टर 8 वीक्स, फोर्थ वन आफ्टर एवरी 4 वीक्स एंड फिफ्थ वन आफ्टर एवरी 3 वीक्स. तो यहाँ पे क्या है, एलसीएम लेंगे इन सारी की सारी वैल्यूज का, तभी पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम कब सारे के सारे बायर्स एक साथ बाय करेंगे. सो एलसीएम क्या आएगा इन सारी वैल्यूज का? वीक्स की वैल्यूज हैं 2, 6, 8, 4, 3, 24 आएगा. 24 आएगा, यानी कि 24 वीक्स में दे विल अगेन बाय. और जनवरी 1st को उन्होंने सबने परचेज किया साथ में, विच वॉज अ मंडे. ईच ऑफ दीज 5 बायर्स ऑन हाउ मेनी ओकेजन्स इन द सेम ईयर? जनवरी 1st से स्टार्ट हुआ ईयर, टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं. 52 वीक्स इन अ ईयर, 52 कंप्लीट वीक्स, और साथ में ऑड डेज भी होते हैं. अब यहाँ पे ये हमारा लीप ईयर है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए 52 वीक्स में कितने बार वो बायर्स साथ में ऑर्डर करेंगे. सो पहली बार तो कर दिया जनवरी 1st को, अब 24 वीक्स के बाद में करते हैं ऑर्डर साथ में, यानी कि अब 24 वीक्स के बाद में करेंगे. ठीक है, और फिर 24 वीक्स के बाद और करेंगे. 52 वीक्स में कितनी बार ऐसा हो सकता है? 3 बार होगा, 3 टाइम्स, इंक्लूडिंग जनवरी 1st. एक बार जनवरी 1st, ठीक है, सेकेंड टाइम होगा जनवरी 1st से 24 वीक्स बाद, और फिर उसके 24 वीक्स बाद, यानी टोटल 48 वीक्स बाद फ्रॉम द स्टार्ट. तो 2 बार और हो पाएगा. बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्सक्लूडिंग द ऑर्डर प्लेस्ड ऑन जनवरी 1st. जनवरी 1st वाले को रिमूव करना है, यानी कि 3 - 1, आंसर विल बी 2. ऑप्शन डी. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 friends, Ashish, Brian, Chaitra, Dorothy, decided to jog for 30 minutes inside a stadium with a circular running track, and the track is 200 meters long. The friends run at different speeds. सबकी स्पीड अलग अलग है. आशीष completes a lap exactly every 60 seconds. आशीष को एक लैप कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 60 सेकेंड्स का. Likewise, Brian, Chaitra और Dorothy के लिए भी टाइम दिया हुआ है. And that time is for Brian this is 1 minute 30 seconds, यानी कि 90 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है Brian को. For Chaitra this is 40 seconds. And for Dorothy this is 1 minute 20 seconds, यानी कि 80 seconds in total. So this is the lap का टाइम, एक लैप कंप्लीट करने का टाइम for each of the friends. The friends begin together at the start line exactly at 4 p.m. 4 p.m. पे they all started together. What is the total of the number of laps the friends would have completed when they next cross the start line together? कितने लैप्स को कंप्लीट कर चुके होंगे जब वो नेक्स्ट फिर से स्टार्ट लाइन को क्रॉस करेंगे साथ में? स्टार्ट लाइन को साथ में क्रॉस करने का मतलब ये क्या हुआ कि दे वुड हैव कंप्लीटेड इंटीग्रल नंबर ऑफ लैप्स. यानी कि अगर पहले वाले ने 5 लैप्स कंप्लीट किया होगा, दूसरे वाले ने भी इवन नंबर में कोई लैप्स ही कंप्लीट किया होगा, तभी स्टार्ट लाइन पे साथ में आएंगे, इजंट इट सो? तो पहले वाले, दूसरे वाले, ए बी सी डी, इन चारों ही फ्रेंड्स का एलसीएम क्या आएगा? इनके लैप टाइम का एलसीएम वैल्यू क्या आएगा? बिकॉज एलसीएम वैल्यू से ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगा इनको.
दोबारा से स्टार्ट लाइन पे आने में साथ में, इजंट इट सो? सबका मल्टीपल चाहिए हमको कि अगर ए ने ए लैब्स कंप्लीट किया है, बी ने बी लैब्स कंप्लीट किया है, सी ने सी लैब्स और डी ने डी लैब्स, दीज वैल्यू शुड बी इक्वल। 60 ए टाइम लगेगा ए को ए लैब्स कंप्लीट करने में, दैट विल बी सेम एज 90 बी, दैट विल बी सेम एज 40 सी, दैट विल बी सेम एज 80 डी, एंड दैट टाइम शुड बी अवर एलसीएम। मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए तो वो तो एलसीएम होगा, अदरवाइज तो एलसीएम का कोई मल्टीपल पॉसिबल हो सकता है, बट मिनिमम वैल्यू दैट विल बी एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा? 60, 90, 40 और 80 का एलसीएम ऑफ 60, 90, 40 and 80, that will be 720 seconds. 720 seconds 720 seconds में ये सारे के सारे लोग स्टार्ट लाइन पे आ जाएंगे। नंबर ऑफ लैप्स कितनी कंप्लीट होगी? क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल ऑफ द नंबर ऑफ लैप्स पूछ रहा है। किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली एलसीएम इन जनरल शायद नहीं पूछा है, हमेशा ऐसे ही पूछा है, टोटल नंबर ऑफ लैप्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कितना आएगा? ए ने कितनी लैप्स कंप्लीट की होंगी? ए की लैप्स हो जाएंगी 720 by 60, so 12 laps. Similarly for B, 720 by 90, 8 laps. For C, 720 by 14, 18 laps. And for D, this will be 9. So 12 plus 8 plus 18 plus 9, this value is 12 plus 8 is 20, 27, 47 will be our answer, option A. Okay, ठीक है। ऑप्शन डी जो कि थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है, दे विल नेवर बी एट द स्टार्ट लाइन टुगेदर अगेन बिफोर 4:30। तो अगर 720 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 12 मिनट्स में दे आर कंप्लीटिंग, डेफिनेटली 4 पे स्टार्ट किया, 4:12 पे दे विल बी मीटिंग अगेन। तो ऑप्शन डी इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट, दे आर एक्चुअली मीटिंग एट 4:12 PM बिफोर 4:30 PM। ठीक है, क्लियर है? इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि जस्ट इन केस अगर ऑप्शन में हमारा ए एंड डी टुगेदर भी होता तो वहां के लिए हमें चेक करना पड़ता। इस केस में नहीं है, बट जस्ट इन केस। नेक्स्ट वन, 3 vice presidents VP regularly visit the plant on different days. 3 VPs regularly visit the plant on different days. Due to labor unrest, VP HR regularly visits the plant after a gap of 2 days. Important in this question. Pause करके पहले खुद से solve करो. Very important. Okay, so due to labor unrest, I believe कि आपने solve कर लिया होगा. ठीक है, VP HR regularly visits the plant after a gap of 2 days. मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर VP HR ने let us say जनवरी फर्स्ट को छोड़ दो, मान लो कि डे 1 पे VPHR ने विजिट किया, ठीक है, देन देयर विल बी अ गैप ऑफ 2 days, देन ही विल विजिट ऑन डे 2, डे 3 पे नहीं करेगा, डे 4 पे करेगा। सो एक्चुअल में गैप कितना हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विजिट्स द प्लांट आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days, तो गैप ऑफ 2 days है, यानी कि इफेक्टिवली एवरी 3 days ही इज विजिटिंग द प्लांट, देन डे 7 आएगा, तो हर 3 दिन के बाद में ही इज विजिटिंग द प्लांट। इज इट क्लियर? सिमिलरली VP operations regularly visits the plant after a gap of 3 days. तो VP HR after a gap of 2 days visit कर रहा है, बट हर 3 दिन में विजिट कर रहा है, तो 3 days में विजिट कर रहा है वो प्लांट। ठीक है, VP HR and VP operations is visiting the plant in every 4 days, 3+1. VP sales is visiting plant in every 6 days, 5+1, 6 days में विजिट कर रहा है। Is the logic clear? And the VPs do not deviate from their individual schedules. CEO of the company meets the VPs when all the 3 VPs come to the plant together. तो इन सारी वैल्यूज का एलसीएम लेंगे हम, तभी पता चलेगा कि when they are meeting together in how many days. So एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 3, 4 and 6, that will be 12 days. 12 days एलसीएम आएगा। क्लियर है? So this implies कि हर एक 12 days में they are meeting up. CEO is on leave from January 5th to January 28th, 2012. Last time CEO met the VPs on January 3rd, 2012. यानी कि January 3rd को all the VPs met together. All VPs met together. Next कब आएगा? +12 Jan 15th को, बट Jan 15th को CEO तो लीव पे है, तो उस दिन मीटिंग नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट आएगा +12, तो Jan 27th को अगेन CEO इज ऑन लीव, क्योंकि 28 तक लीव पे है, तो मीटिंग तो नहीं हो पाएगी। और Jan 22 में जब हम 12 डेज ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? जनवरी में होते हैं 31 डेज, तो Jan 27 प्लस 12 करोगे, दैट विल बी 39, 27 प्लस 12 इज 39। बट इसमें से जनवरी के 31 डेज हटा दो, बचे कितने? 8 डेज बचे, यानी कि नेक्स्ट डेट विल बी 8 Feb 2012, एंड दैट विल बी द डेट व्हेन द CEO विल मीट ऑल ऑफ देम। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। Clear? Option C will be the answer in this case. Next question. Next is a chocolate dealer has to send chocolates of 3 brands to a shopkeeper
All the brands are packed in boxes of same size. The number of boxes to be sent is 96 of brand A, 96 boxes of brand A, 240 boxes of brand B, and 336 boxes of brand C. All the brands are packed in boxes of same size. तो boxes का size same है, ठीक है. These boxes are to be packed in cartons of some size containing equal number of boxes. Containing equal number of boxes, यानी इस बार इन boxes को हमें पैक करना है in another box, in carton, in another carton, ठीक है, which contains equal number of boxes. Each carton should contain boxes of same brand of chocolates. एक brand of chocolates का ही carton पैक कर पाएगा. What could be minimum number of cartons that dealer has to send? Minimum number of cartons चाहिए हमको, ठीक है. तो एक carton में हम let us say हमें A cartons चाहिए इन 96 boxes के लिए, B cartons चाहिए 240 boxes के लिए और C cartons चाहिए 336 boxes के लिए, ठीक है. तो अगर ऐसा है कि A cartons, B cartons और C cartons, तो हमें पता है कि 96 डिवाइड बाई A विल बी सेम नंबर. ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कोई क्वेश्चंस ने पीछे कमेंट किया है वीडियोस में कि सर HCF कहाँ पे लगाएंगे, LCM कहाँ पे लगाएंगे, तो उसके लिए. अदरवाइज देख के जिनको समझ में आ रहा है उनको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये समझने से के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको डाउट हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होगा, हमारा डेफिनेट वैल्यू क्या है 96 बाई A. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू मिलेगा 240 बाई B, 336 बाई C, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ कार्टन्स है, नंबर ऑफ कार्टन्स है. What is this value 96 by A? This is number of boxes inside one carton. These should be equal. These should be equal क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, each carton should contain same, ये तो कह ही रहा है, साथ में कह रहा है these boxes are to be packed in cartons of same size containing equal number of boxes. तो 96 by A should be equal to 240 by B should be equal to 336 by C, and this should be a common value. और वो फैक्टर ही तो होगा इन सब का, फैक्टर ही तो होगा. 96 में तुम A डिवाइड करो तो क्या वैल्यू मिलेगा, फैक्टर मिलेगा 96 का. 240 में B डिवाइड करो, फैक्टर ही तो मिलेगा, ठीक है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्रैक्टिस के साथ में समझ में आनी चाहिए, बट आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस तरह से लिख के एक बार चीज़ों को समझो. एटलीस्ट एग्जाम से अभी पहले 8-10-15 क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस कर लो सो दैट यू आर वेरी क्लियर ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है. सो एनी केस, सो दैट्स ऑल. हमें यहाँ पे HCF चाहिए. इनका HCF क्या वैल्यू आएगा 96 और 240 का. भाई 240 और 336 सबसे क्लोज नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 96 का डिफरेंस है, यानी कि या तो 96 हमारा HCF होगा या उसका कोई फैक्टर HCF होगा. 96 HCF हो सकता है क्या, 240 को नहीं डिवाइड कर रहा है, 48 डिवाइड कर रहा है, सो HCF विल बी 48. HCF आ जाएगा 48. हमें बट HCF नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्टन्स कितने होंगे, यानी कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू चाहिए हमें. तो A कितना आ जाएगा, A विल बी 96 बाई HCF, यानी कि कितने कार्टन चाहिए, A टाइप के 2, B टाइप के 240 बाई 48 5 कार्टन्स, और C टाइप के 336 बाई 48. 336 में 48 डिवाइड नहीं करोगे. देखो अगर वैल्यूज हमारी टिपिकल जैसे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 240 का हमें वैल्यू पता है, 240 डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू 5. अब 240 में 96 ऐड किया, 96 के लिए दो और बॉक्सेस लगेंगे, दैट इज ऑल. 2 और कार्टन्स लगेंगे, यानी कि 2 प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2 7. टोटल सम आ जाएगा हमारा 7 प्लस 7 14, ऑप्शन A. क्लियर है, ओके. सो आंसर विल बी 14. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट क्वेश्चन. अच्छा सवाल है. सो इस क्वेश्चन को भी प्रॉपर्ली सॉल्व करना है. A, B, C and D and E are integers such that 1 is less than equal to A is less than B is less than C is less than D and D is less than E. A, B, C, D, E ये सारे के सारे क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP में है. LCM M, N is the least common multiple of M and N, then the maximum value of this. ठीक है. अब सिंस A, B, C, D, E are in geometric progression, तो लेट अस से या हम कह सकते हैं कि B क्या होगा, अगर हम A को मान लें, A तो A ही है, B इज इक्वल टू AR. अगर R कॉमन रेशियो है हमारा तो नंबर्स क्या होंगे, C विल बी AR स्क्वायर, D विल बी AR क्यूब एंड E विल बी AR टू द पावर 4. नाउ अगर एलसीएम लोगे A और B का, तो बेसिकली एलसीएम ले रहे हैं हम A और AR का. अगर A और AR का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, AR ही तो आएगा, यानी B ही तो आएगा, B ही तो आएगा. इजंट इट सो? सिमिलरली अगर एलसीएम लेंगे हम B और C का, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, C आएगी, C आएगी. तो यानी कि एलसीएम ऑफ A एंड B विल बी इक्वल टू B ओनली, एलसीएम ऑफ B एंड C विल बी इक्वल टू C ओनली, एलसीएम ऑफ C एंड D विल बी D एंड एलसीएम ऑफ D एंड E विल बी E. सो बेसिकली हमें क्या चाहिए वैल्यू, 1 बाई B प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई D प्लस 1 बाई E, एंड वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. अगर हमें इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो सिंस 1 बाई समथिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1 बाई x को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, इन जनरल बात कर रहे हैं, अगर x का हमें कोई रेंज दिया हुआ है कि x हमारा 5 से लेके और 15 के बीच में है,
ठीक है, और 1/x को मैक्सिमाइज करना है, तो 1/x मैक्सिमाइज कब होगा, जबकि जो x है वो मिनिमम हो। जब x मिनिमम होगा तभी 1/x मैक्सिमम होगा, यानी कि x शुड बी इक्वल टू 5 इन दिस केस, बिकॉज x जितना बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा 1/x छोटा होता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/e को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो b c d शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, दीज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितने छोटे हो सके उतना अच्छी बात है। तो कितना छोटा वैल्यूज हम ले सकते हैं, बिकॉज दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो जो इनका कॉमन रेशियो है वो जितना छोटा होगा और a यानी फर्स्ट टर्म जितना छोटा होगा उतना ही छोटे ही होंगे सारे नंबर्स, यानी कि a को हमें बहुत छोटा रखना है और कॉमन रेशियो को भी बहुत छोटा रखना है। तो a सबसे छोटा कितना हो सकता है, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 1 लेस देन इक्वल टू a, यानी कि a कैन बी इक्वल टू 1, तो a को हम इक्वल टू 1 ले लेते हैं। और कॉमन रेशियो क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर इंटीजर्स, सो कॉमन रेशियो एट द मिनिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकते हम, क्योंकि 1 लेंगे सारे इक्वल हो जाएंगे और इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, इनइक्वालिटी है। तो अगर हमने 2 ले लिया तो b c d क्या हो जाएंगे, b will be equal to 2, c will be 4, d will be 8 and e will be 16। 1 2 4 8 and 16 यही वैल्यूज हो जाएंगी, बस खत्म हो गया सवाल हमारे लिए। 1/b will be 1/2, 1/c 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, सम कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो 16 तो ऊपर आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, सो दिस इज 15/16। आवर आंसर विल बी 15/16 ओनली, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा सवाल था, isn't it so? ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन में चीज़ें समझ में आई हैं, मज़ा आया है, पसंद आई है चीज़ें, तो डेफिनेटली सेशन को लाइक करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे डाउट रह गया है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।